viewers, welcome to my YouTube channel Creative Mother Says. Subscribe my YouTube channel so that you will get more videos from my YouTube channel. Today I am going to teach you one of the interesting chapter, that is light. So divert your attention towards me. I will try to explain it as simple as you want. So first of all, I will tell you who gave the concept of light. So it was an Arab scientist named as Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham was an Arab scientist. So he is also regarded as the father of modern optics. And he wrote few books like Book of Optics, written by Ibn al-Haytham, and its original title is Kitab al-Manazir. If anyone wants to download this book, so the name of this book is Book of Optics, and its original title is Kitab al-Manazir. So it was an Arab scientist as well as a physicist, astronomer and mathematician. So he gave the concept of light. तो उसने कैसे दिया concept of light, क्या कहा उसने इसके बारे में, लाइट के बारे में. तो उसने how he discovered light, I mean, so उसने कहा कोई भी सोर्स लो, मान लो सन, मून, कैंडल, बल्ब, किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होती है, तो वो वहां से क्या रिफ्लेक्ट होती है, फिर तब जाके हमारी आइज तक पहुंच जाती है. जब हमारी आइज तक पहुंच जाती है तो डायरेक्ट इमेज आइज में नहीं बनती है, पहले उसने कहा इमेज हमारे ब्रेन में बनते हैं, फिर हमें कोई भी चीज क्या नजर आता है. तो ये कंसेप्ट था किसका, इट वाज द कंसेप्ट ऑफ इब्न अल-हैथम. सो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लाइट पे काम किया. जैसे कि पहला वाला साइंटिस्ट था उनमें से कौन, न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. तो पहला था Isaac Newton, or we can say Isaac Newton. He gave the corpuscular theory of light. And second one was Christian Huygens. इसने wave theory of light दी. तो तीसरा था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दी. फोर्थ वन वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन. इसने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी. His name was Albert Einstein. Fifth one was ये भी आया Isaac Newton, Christian, James, Albert. तो fifth one was Thomas Young. He gave Young's, उसने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो उसके बाद लास्ट वन था, वो था लॉइस डी ब्रॉगली. इसने वेव पार्टिकल डेविलेटिविटी दिया. ठीक है. तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने हाइपोथेसिस अपनी थ्योरीज दी. तो फर्स्ट वन वाज Isaac Newton. He gave the corpuscular theory of light. This theory is also called as particle theory of light, or we can say Newton's theory of light. And second one was Christian Huygens. He gave the wave theory of light. And third one was James Clerk Maxwell. He gave the electromagnetic theory of light. And fourth one was Albert Einstein. He gave the quantum theory of light. And fifth one was Thomas Young. He shows Young's double slit experiment. This theory is also called wave theory of लाइट ये एक्सपेरिमेंट. ठीक है.
एंड 61 लॉ इज द प्रॉपर्टी शोस वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने लाइट पे काम किया है। तो मैंने आपको अभी डेफिनेशन लाइट की नहीं बोली, अभी तो मैं आपको ये साइंटिस्ट के बारे में बोलता हूँ, कौन किसने क्या थ्योरी दी, उन्होंने क्या बोला लाइट किसकी बनी होती है, पार्टिकल की बनी होती है, वेव की बनी होती है, फोटॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो पहले जब हमें ये पता चलेगा तो तभी हमें समझ में आएगा ना लाइट क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट मत रखेंगे रटा याद लाइट क्या होती है। ठीक है, तो जो इसका कंसेप्ट था, जो इसने थ्योरी दी थी, किसने थ्योरी दी थी, किसने, इसाक न्यूटन ने। इसाक न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी of light, corpuscular theory of light. This theory is also called as particle theory of light. इसने कहा light is made up of tiny particle. Light is made up of tiny particles called corpuscles. Corpuscles that travels in a straight line, with a very high speed, high speed. So it was a scientist named as Isaac Newton. He gave the corpuscular theory of light. In his theory, what did he say? He says that light is made up of tiny particles called corpuscles that travels in a straight line with a very high speed. So what does that mean, corpuscles? Here the word corpuscles means tiny particles. तो इसने कहा कि जो ये corpuscles क्या होते हैं, means कि light tiny particles की बनी होती है। किनकी? tiny particles की बनी होती है। That travels in a straight line. Means कि अगर सपोज आप मान लो बुलेट, गन से बुलेट निकलती है तो वो डायरेक्ट चलती है, वो क्या है, पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है, और वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ऐसे ही समझ लो ये इसके एग्जांपल। तो इसने क्या कहा, लाइट इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल। कॉर्पस्कुलस जो यहाँ पे है ना, कॉर्पस्कुलस मींस लिटिल पार्टिकल्स। तो दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड। तो यही लिटिल पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। और इसने कहा these particles are perfectly elastic in nature. What does that mean, perfectly elastic in nature? Means moving in a random motion. तो रैंडम मोशन मीन्स तो इधर ये पार्टिकल्स कभी उधर कभी इधर उधर है, तो इनका कोई एक कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होती है, उधर इधर चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा, आइंस्टाइन ने कहा। और इसने इसी थ्योरी से ये लॉज एक्सप्लेन किए। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इसने एक्सप्लेन किए इस थ्योरी से, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से। तो इसने क्या कहा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा अगर हम कोई भी मान लो कोई भी बाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये बाल लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने इसके साथ स्ट्राइक की तो यहाँ से वापस आई। तो जब यहाँ से ये वापस आती है, मीन्स कि हम बाल नहीं लेते या हम बाल ही लेते हैं, तो यहाँ से तो इसको कहेंगे हम इंसिडेंट बाल, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड बाल। तो यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, तो एंगल आर किसके बराबर, एंगल आर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसने बोला स्ट्राइक, ये सॉरी यहाँ पे ये वापस कैसे आती है, यहाँ पे इसने बोला ड्यू टू रिपल्शन की वजह से ये वापस आती है। कौन? ये बाल। अदरवाइज इट विल नॉट कम बैक फॉरवर्ड। तो ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मैंने इसकी बाल वापस नहीं आएगी यहाँ से। तो इसने कहा था, किसने, तो इसका नाम क्या था, इसाक न्यूटन। तो ये था इसका, इसने कहा ड्यू टू रिपल्शन की वजह से यहाँ पे ये वापस आती है। यहाँ हम लेंगे
अब दूसरा लॉ जो इसका है उसका नाम क्या है? तो जो इसने दूसरा लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसने इसमें क्या कहा? इसने कहा कोई भी मीडियम आप लो, कोई भी मीडियम, जब लाइट रियरर मीडियम से आती है, रियरर मीडियम से आती है, इसने कहा था लाइट पार्टिकल्स, तो रियरर मीडियम से आती है तो वो उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में क्या चेंज होती है? डेंसर मीडियम में क्या होती है? चेंज। ये मैं एयर लेता हूँ, मैंने इसके रियर मीडियम, ये मैंने कोई वाटर लिया, वाटर का हम दिखाते हैं 3 डॉट ऐसे साइन ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मैंने लिया क्या? वाटर। तो इसने कहा जब रियर मीडियम से लाइट आती है, फिर जब वो डेंसर मीडियम में चली जाती है उसकी स्पीड वेरी होती है, यानी कि चेंज होती है। तो जो रियर मीडियम में इसकी स्पीड होती है लाइट की, वो डिक्रीज होती है, मींस की दिस पार्टिकल्स की मींस कॉर्पस्कुलस की वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? तो किसने कहा? न्यूटन ने कहा वो डिक्रीज होती है, वाइल एज जो डेंसर मीडियम है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इसका गलत निकला, इसने उल्टा बोला था, तो ये गलत निकला। जब साइंटिस्ट ने लेटर इसको प्रूव किया, दैट वाज रॉन्ग, सो इट वाज रॉन्ग, ये ला तो इसका रॉन्ग था। तो और इसने जो इसके ड्रॉबैक्स आए, तो ये पहला वाला ड्रॉबैक था, और जो इस लॉ के मतलब इस थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स आए वो थे क्या? वो इट कुड नॉट एक्सप्लेन interference, diffraction and polarization of light. So I will tell you this interference, diffraction and polarization of light. What are these terms? Interference, diffraction and polarization in my next video. So subscribe my YouTube channel. Thanks. Have a nice day.